Good morning, dear students. I am back again with the next topic. This time we are going to study about the minerals. See, minerals are the chemical compounds which are found naturally on earth. अब जो chemical compounds होते हैं और जो कि जिसमें chemical compositions होती हैं और जो naturally हमारे earth के ऊपर accrue होते हैं, we call them the minerals. Rocks may be formed by one type of mineral or a mixture of many minerals. बच्चे yesterday we had seen कि हमारे जितने भी rocks थे वो अलग अलग minerals से भी बने होते हैं. Like the examples of some of the minerals when I talk about is gold, quartz, diamond. Minerals are found in rocks and can be metallic or non-metallic. Now first of all we are going to talk about the metallic minerals. बच्चे what do you mean by the metallic minerals? Metallic minerals are known as ore. Do you know what is an ore? A naturally occurring solid material from which a metal or valuable mineral can be extracted profitably is known as an ore. बच्चे ore एक raw form होता है. जैसे कि आयरन ओर है. जब हमारे को आयरन मिलता है तो हमारे को आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? सो ओर इज़ अ रॉ फॉर्म और उस ओर से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. दे हैव अ मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप. अब इनके अंदर एक मेटेलिक लस्टर होता है एंड वी कैन एक्चुअली मोल्ड देम इनटू एनी शेप वट एवर यू सी. अगर आयरन को मोल्ड करना है तो हमारे को हीट करना पड़ेगा ना. सो इसी तरह से गोल्ड को भी हमें हीट करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, सिल्वर को मेल्ट करना पड़ेगा एंड देन दे कैन बी यूज्ड. बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मिनरल्स एंड देन देयर मेटल्स. Bauxite is particularly aluminium. Magnetite, iron. It is sulfurite, zinc. Cuprite, copper. And galena, it is lead. So metals are used for making machines, furniture, wires, coin and utensils. Even the coins that you get now, it is made up of a metal. Now बच्चे, gold and silver are special metals which are used for making jewelry. And remember, gold and silver are really very expensive. So बच्चे, what I have discussed with you here is the metallic minerals. We have discussed about the minerals, ores and their metal. So remember, aluminium का ore क्या होता है? Bauxite. Iron का magnet. Then zinc, it is sulfurite. Copper, cuprite. And lead, it is galena. Now बच्चे, we are going to talk about the non-metallic minerals. But do you know, they do not non-metallic minerals. These minerals do not have any metallic luster and they break down very easily. और ये easy से टूट भी जाते हैं. And what are they? They cannot be molded also. हम इनको mold भी नहीं कर सकते. जैसे ये raw form में आते हैं हम इसको वैसे ही use करते हैं. And these minerals are also called industrial minerals. Because हम इसको industry के अंदर use करते हैं. Let's take an example. जैसे coal आ गया. कोल को आप थर्मल प्लांट्स में भी यूज़ करते हो. कोल को आप बर्निंग के लिए फ्यूल की तरह यूज़ करते हो, इज़न्ट इट? और कोल हम इजीली ब्रेक भी कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज अ सी टू विथ सैंड, ग्रेवल, क्ले, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स. इज दैट क्लियर? सो बच्चे, यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट इसी के अंदर से गैस, petroleum and coal are some important non-metallic minerals but they are used as fuels. Do remember, हम लोगों ने sand, gravel, clay, limestone देखा था ना in the rocks. तो they were the minerals present in the rocks, right? But these minerals are non-metallic minerals. इसमें metal content नहीं होता, ये non-metallic होते हैं. अब बच्चे, इसी तरह से कुछ ऐसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जिसको हम लोग फ्यूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. दे आर गैस, पेट्रोलियम एंड कोल. रिमेंबर, घर पे हम जो LPG यूज़ करते हैं, इज दैट क्लियर? इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ. पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है जो आप लोग पेट्रोल और डीजल जिसका यूज़ करते हो, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ. कोल इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ.
सो ये क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, दे आर द फ्यूल्स. नाउ बच्चे लेट्स टॉक अबाउट कोल. बच्चे कोल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक and is mostly used for power generation and metallurgy. What do you understand by power generation? Thermal plants के अंदर हम कोल का यूज़ करते हैं. Metallurgy means particularly for the metals and all, metals को heat करने में. Right students, let's see how is coal formed. You should remember that coal is formed from the plants and animals that died millions of years ago. डू रिमेंबर, जो कोल होता है वो प्लांट और एनिमल से बना हुआ है. बच्चे जब ये प्लांट्स और एनिमल्स बरेड हो जाते हैं अर्थ के अंदर, ये दे स्टार्ट लेयरिंग अप, तो आपको कई जगह तो इनके पास कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती कि ये लोग डीकम्पोज कर सकें. तो अंडर इमेंस हीट एंड प्रेशर दे टर्न इनटू द कोल. इज दैट क्लियर? बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा हीट के कारण से जो बॉटम लेयर्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, दे ट्रांसफॉर्म इनटू द कोल. Do remember, we have 4 types of coal. One is peat, other is lignite, other is bituminous, and the third is anchorite. Let's see the first one, peat. It represents the first stage of transformation. It was the earliest type of coal to be formed. Peat contains more impurities and produces more smoke and pollution. रिमेंबर, पीट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्मोक को प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को लीड करता है. इट इज़ नॉट ऑफन बिकॉज इट बर्न्स लाइक वुड. इट गिव्स लेस हीट, एमिट्स मोर स्मोक एंड लीव्स अ लॉट ऑफ ऐश. इससे ऐश बहुत ज़्यादा रह जाती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज लिग्नाइट. इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल कोल. जितना भी कोल हमारी अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, मैक्सिमम पोर्शन इज लिग्नाइट. यू शुड रिमेंबर, इट इज़ कॉल्ड ब्राउन कोल बिकॉज ऑफ इट्स कलर. ये बहुत सॉफ्ट होता है एंड ऑफन रिगार्डेड एज लोअर ग्रेड कोल. इसको हम लोअर ग्रेड कोल बोलते हैं. नाउ बच्चे, बिटुमिनस. व्हेन आई टॉक अबाउट बिटुमिनस, इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज्ड कोल. इट इज़ डेंस, compact and is usually black in color. और बच्चे जनरली जो फाइंड होता है ना, दैट इज़ बिटुमिनस and it is used for production of coke and gas. Let's see what you understand by coke. Coke को हम लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक नहीं समझेंगे. Coke is something different. A solid fuel made by heating coal in the absence of air. जब हम लोग कोक, मतलब जब हम जैसे पीट या लिग्नाइट को और हीट और प्रेशर के अंदर वी जस्ट ट्राई टू पर्टिकुलरली बर्न इट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हीट इट आउट, it turns out into a black color and that is bituminous, right? Last is anchorite. When I talk about anthracite, it is hard and considered as a best coal. It has a semi-metallic luster. It burns slowly with a blue flame. In India, it is found only in Jammu and Kashmir. Do remember, where is anthracite found? Anthracite is found only in Jammu and Kashmir in India. Dear students, let's discuss about petroleum. You know, petroleum is a yellowish black liquid found below the earth's surface. बच्चे, जो हम पेट्रोल और डीजल, जो एलपीजी सिलेंडर्स, जो सीएनजी हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो बहुत रिफाइंड फॉर्म है. ये हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम से, जो कि हमारी अर्थ से सी बेड में से निकलता है. यू नो इट वेरी वेल कि हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म्ड. पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड व्हेन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेड एनिमल्स, या जो हमारे प्लांट्स हैं, यूजुअली एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो बरिड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाते हैं. दे गेट बरिड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स इन द सी एंड इज सब्जेक्टेड टू बोथ इंटेंस हीट एंड प्रेशर. और इनके ऊपर जब बहुत हीट एंड प्रेशर पड़ता है, व्हेन दे आर बरिड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स, देन दे फॉर्म पेट्रोलियम. Petrol obtained from petroleum is used as fuel to run the vehicles. Even petroleum is used to manufacture plastics, paints, cosmetics and fertilizers. So these are the uses of petroleum. Do remember. Now बच्चे, we are coming to the last section. ये सारे हम लोगों ने क्या पढ़े हैं? जो मिनरल्स हैं, जो हमारे मेटल्स मिनरल्स हो गए या नॉन मेटल हमारे मिनरल्स हो गए, नॉन मेटेलिक,
ऑल दीज आर अर्थ्स रिसोर्स। अब इस अर्थ के रिसोर्स को हमारे को कंजर्व करके रखना है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ natural resources. Now, but it took millions of years for the formation of coal and petroleum. The amount of minerals present in the earth is also limited, you know it very well. But we consume these natural resources at a very faster rate. आजकल everywhere, in every way of life, every walk of life, हम लोग अपने ये minerals को बहुत ज़्यादा utilize कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं. This causes the depletion of resources. So we have to conserve our resources. अब इन्हीं रीज़न के कारण से because these resources are being used faster और जो इनकी availability है वो बहुत कम है, इसी कारण से हमारे को अपने resources को conserve करना पड़ता है. So how can we conserve them? We should keep our gas stoves and machines in good condition. हमें बार बार अपने गैस स्टोव की, अपने machines की सर्विस करवाते रहना चाहिए. We should rely on the alternative sources of energy as wind energy, water energy and solar energy. ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सिर्फ कोल को यूज़ करेंगे, हम लोग वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं, विंड को भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी शुड यूज़ ऑयल एंड कोल वेरी केयरफुली. आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वेरी लिमिटेड सप्लाई, इसीलिए हमारे को कोल और ऑयल को बहुत केयरफुली यूज़ करना है. अगर आप इन चीज़ों को, हमारी रिसोर्सेज को, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करेंगे, तभी दीज वुड बी अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स एंड हम लोग बिल्कुल सिक्योर रहेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, I think the whole mineral topic is clear to you. Now please go through the video, and if you have any doubt, we can clarify it tomorrow. So remember one thing, use judiciously so that we can have a better future. Thank you.